रीनल फेलियर देखेंगे। तो खामोश हो जाए प्लीज बेटा। तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था पार्शियल रीनल फेलियर पर नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम, तो उसमें हमने मेनली देखा था कि क्या कौन सी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती हैं जो कि लीड करती हैं नेफ्रोटिक को, और कौन सी हैं जो कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम को। तो कुछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऐसी हैं जो कि मिक्स दोनों ही नेफ्रोटिक एज वेल एज नेफ्राइटिक सिंड्रोम दोनों ही करवाती हैं। कंप्लीट रीनल फेलियर, दिस कैन बी एक्यूट और इट कैन बी द क्रॉनिक वन। ये आज का हमारा टॉपिक है, तो दोनों को वन बाय वन हम देखते हैं। नंबर वन, acute renal failure ARF. If there is sudden but reversible loss of the renal function, when all of the nephrons they are suddenly and simultaneously stopping their functioning, we call it acute renal failure. So this one is acute shutdown of the renal function, acute shutdown of the nephron functions. So we call it acute renal failure. Khamosh Jain, please. This occurs when the kidney suddenly loses the ability to eliminate the waste product. The main function of the kidney is to excrete the waste product, and these are in excess: salts, fluids, and the waste material. तो एक तो उनका जो किडनीज का मेन फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, उसके साथ साथ साल्ट एंड फ्लूइड्स की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से साल्ट्स की और किस तरह से फ्लूइड्स की एक्यूमुलेशन होती है। सो अल्टीमेटली लीडिंग टू द इलेक्ट्रोलाइट एंड वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेशन विद इन द बॉडी। दिस में डेवलप रैपिडली ओवर few hours or days or sometimes may extend up to the weeks. So this is acute renal failure, so resulting the condition within few hours. This may be life threatening and requires intensive treatment. However, it may be reversible. जो कि हमने पहली स्लाइड में हमने देखा है, this is a sudden but reversible damage. तो ये reversible damage है और this can be compensated with intensive management. What is the etiopathogenesis of acute renal failure? The causes they may be classified as pre-renal causes, renal causes, and then post-renal causes. तीन different categories में हम इनके causes को देखेंगे, ARF के causes को, acute renal failure को. So number one is the pre-renal causes. Pre-renal causes कौन से हैं? Those which lead to the sudden decrease in the blood flow to the kidney. Kidney का जो blood flow है वो decrease करवाना है, ischemia करवानी है ultimately. So renal ischemia, this is ultimately resulting in the functional loss and then decrease in the GFR, or sometimes both the consequences are taken simultaneously. So renal ischemia leading to the loss of the nephron function with decrease in the GFR. तो ये दो चीजें हो रही हैं because of the pre-renal ischemia. जो renal ischemia हो रही है, that is one of the pre-renal cause. अभी ischemia क्या करवाएगी, क्या होगा इसमें? There is blood or the fluid loss is occurs in the severe burns. So because of the burns, there is loss of fluid. Loss of the fluid may lead to the renal ischemia. तो इस तरह से है कि severe burns की सूरत में there is excessive loss of the fluid. Similarly, if there is excessive loss of the blood, that can also lead to the decreased blood supply towards the kidney. बेटा खामोश हो जाए please. तो ये सारी चीजें सिवियर डिहाइड्रेशन करवा रही हैं। सिवियर डिहाइड्रेशन की वजह से देयर इज लॉस ऑफ द ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द किडनी. Sometimes some medications which are used for the blood pressure, they may also result into the renal ischemia, heart failure, liver failure, and infections. They all may lead to the renal ischemia, or they are all the pre-renal causes of the
रीनल फेलियर। हार्ट फेलियर की वजह से अगर रीनल फेलियर में पेशेंट जा रहा है तो इसको हम कार्डियो रीनल सिंड्रोम कहते हैं। सिमिलरली हेपेटोरीनल सिंड्रोम इज विद द liver failure. So heart failure, liver failure, septicemia, infections, they all may be one of the pre-renal causes. अब हम आ जाते हैं सेकंड नंबर पर इंट्रारीनल causes पर। इंट्रारीनल किडनी की एक साथ किडनी की डिजीज है और इसमें हम देखते हैं वेस्कुलर डिजीज ऑफ द आर्टरीज आ जाती हैं जिसमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन आ जाता है। दो चीजें आ जाती हैं जो कि वेस्कुलर डिजीजेस में आती हैं। उसके बाद ग्लोमेरुलर डिजीजेस आ जाती हैं जिसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाता है। एंड थर्ड इज द ट्यूबुलो-इंटरस्टिशियल डिजीजेस। ट्यूबुलो-इंटरस्टिशियल डिजीजेस में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस आ जाती है। तो तीनों जगहों पर डिजीज है दैट इज एज अ इंट्रारीनल कॉजेज ऑफ द रीनल फेलियर। तो ग्लोमेरुलर में डिजीज हो, ट्यूब्यूल्स में डिजीज हो या आर्टरीज में डिजीज हो, तीन डिफरेंट टारगेट्स हैं फॉर द इंट्रारीनल डिजीज। ग्लोमेरुलर, ट्यूबुलो-इंटरस्टिशियल टिश्यू आ गया और आर्टरीज आ गई। तो तीन तरह के टिश्यूज में ये लीजन आ रहे हैं जो कि इंट्रारीनल कॉजेज में आ जाएंगे। तो ये ट्यूब्यूल्स और ये इंटरस्टिशियल। तो ट्यूबुलो-इंटरस्टिशियल में एक साथ ही हम इसको लेकर सकते हैं। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होती है, यहाँ पर ट्यूब्यूल्स में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होती है। पोस्ट रीनल कॉजेज जो कि किडनी के बाद कोई जो है लीजन आ रहा है। पोस्ट रीनल कॉजेज दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय sudden obstruction to the flow of the urine anywhere along the renal tract distal to the opening of the collecting ducts. This may be caused by blockage, by stones. एक स्टोन्स रीजन हो सकते हैं जो कि पोस्ट रीनल ब्लॉकेज करवाएं। उसके बाद sometimes the blood clots just like in immune thrombocytopenic purpura में, malignant hypertension में, और उसके बाद bladder cancer causing the mass effect on the lumen of the wall on the lumen or from the wall of the bladder. तो mass effect हो, कोई ट्यूमर हो जो कि bladder में हो और वो external compression करे, mass effect लेकर आए। उसके बाद कुछ external compression आ सकते हैं from the lower urinary tract, from the ureter, bladder, neck or from the urethra, just as in cervical cancer, colon cancer, prostate, enlarged prostate, BPH में, benign prostatic hyperplasia में, इन सब में क्या हो रही है? There is external compression from the outside, leading to the acute renal failure, and these are the post-renal causes, जो कि obstruction करवा रहे हैं ultimately. Sometimes the nerve damage involving the nerves can control, which are controlling the bladder, they may also result into the post-renal acute renal failure. इन तीनों चीजों में whether there are the pre-renal, post-renal or intra-renal causes, हम देखते हैं it is important that ARF, which is originating is pre and the post-renal disease, चाहे वो renal के post-renal causes जो हैं या pre-renal, they are ultimately leading to the renal ischemia. तो infra-renal cause को ही lead कर रही होती हैं। तो initially you can classify the lesion as pre-renal or the post-renal or the intra-renal. लेकिन जैसे ही एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट एडवांस करता है तो फिर हम देखते हैं कि ये जो प्री रीनल और पोस्ट रीनल डिजीजेस हैं ये अल्टीमेटली इंट्रा रीनल डिजीज करवाते हैं, whether they are going for the glomerular disease, whether they are going for the tubulo-interstitial or the vascular disease. तो ये अल्टीमेटली इंट्रा रीनल डिजीज को ही एनहांस करते हैं और उसी को ही प्रोपेगेट करते हैं। Thus, full blown ARF acute renal failure it reflects some degree of the नेफ्रॉन डैमेज। तो हमें नेफ्रॉन डैमेज अल्टीमेटली मिल ही जाता है जब हम देखते हैं जब एडवांस फुल ब्लॉन ARF में पेशेंट आ जाता है, एक्यूट रीनल फेलियर में आ जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि हमें जो प्री रीनल कॉजेस, पोस्ट रीनल कॉजेस या जो कि इनिशिएटिंग इवेंट थे फिर उनको क्लासिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि इनिशियल इंसल्ट जब हो रही होगी, although this is the acute renal failure जो कि within hours हो सकता है, within hours हो सकता है, within few initial days हो सकता है, तो उसमें initiating event तो एक हो सकता है, लेकिन ultimately उसमें renal damage आ जाएगा और उसके renal damage आने के बाद हम classify नहीं कर सकते कि whether
this event has started from the pre-renal cause or the post-renal cause. अब क्योंकि अब उसमें अल्टीमेटली क्या है, इंट्रा-renal cause भी मौजूद है जी। हाँ, ब्लड प्रेशर कम होना अलग चीज है, स्कीम अलग चीज है। स्कीम इज द लॉस ऑफ द ब्लड। पूरा उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, वो आ जाएगी कि किस तरह से इस्कीमिया होगी तो उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, वो आ रहे हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में ये सारी चीजें आ जाएंगी इसकी। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स इसके क्या हैं? almost always occurs in connection with the another medical condition or the event. Hospitalization is one of the important factor here, in which the patient requires the intensive care. These patients, they are prone to develop ARF, one of the risk factor, advanced age. Then the blockage in the blood vessels, which are particularly in the legs and the arms, which are the peripheral artery diseases, diabetes, high blood pressure, heart failure, kidney disease, internal kidney disease हो, liver disease हो, या certain cancers, या उनकी even management protocols जो कि follow किए जाते हैं for the treatment of the cancer, they all being the drugs, they can lead to the ARA, acute renal failure. ये सारे risk factors हैं जो कि हमने pre-renal, post-renal और intra-renal causes में ही जो है indirectly या directly involve हो रहे हैं। अब आ जाती है पैथोफिजियोलॉजी की, इसका मैकेनिज्म हो क्या रहा है, किस तरह से ये सारी इंसल्ट हो रही है। नॉन फंक्शनिंग नेफ्रॉन्स हैं जिनमें फंक्शन नहीं हो रहा है, दे विल लीड टू द ओलिगोयूरिया और एन्यूरिया, दैट इज डिक्रीज यूरिन फॉर्मेशन और द एब्सेंस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। डिक्लाइन इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, इट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द ब्लड एंड देयर इज रिजल्टेंट एजोटीमिया। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसी वेस्ट प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन में अगर यूरिया कैटेनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, वी कॉल इट एजोटीमिया, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ दीस नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स। उसके बाद और क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयंस। इसका भी पूरा मैकेनिज्म है, इसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा अभी कुछ स्लाइड्स में कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस तरह से यहाँ पर काम करेगी। उसके बाद हम देखेंगे हाइपरकैलेमिया हो सकती है। व्हाट इज दिस हाइपरकैलेमिया? ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया एंड देन हाइपरवोलेमिया। इस साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन हो जाएगी। साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन भी जो है किस तरह से ज्यादा एग्रावेट होगी एआरएफ में, इसकी भी हम डिटेल देखेंगे। तो पोटेशियम की, सोडियम की और वाटर की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी विद इन द ब्लड वेसल। तो हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपरवोलेमिया, ऑल दिस इज हैपनिंग विद इन इनसाइड द ब्लड वेसल। फैटिंग कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं, दोबारा आएंगे इस पैथोफिजियोलॉजी पर, लेकिन बीच में कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। फैटिंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, nausea, vomiting. These features, they are occurring because of accumulation of azotemia. Because of azotemia, जो azotemia हुई है, blood urea nitrogen हुई है, this will lead to these features. उसके बाद arrhythmias, they will be because of the, ये जो हमने hyperkalemia देखा अभी यहाँ पर pathogenesis में, उसमें this elevated level of the potassium may lead to the irregular heartbeats, arrhythmia। उसके बाद oligouria, anuria, or sometimes we can see the different phenomena with the blood pressure. It may be normal, or it may be high, or it may be low. So all these can be seen in patients with the ARF. There may be the normal blood pressure, or it may be low or the high blood pressure. Sometimes the patient, they may present with the pain in the flanks, and this is with clotting of the kidney blood vessels or inflammation within the kidney. So if the kidney's blood vessels,
they are showing the clotting or there is inflammation within the kidneys. This may present with the pain in the flanks. Sometimes the kidney injury, this is the result of the dehydration. जिस तरह से हमने pre-renal causes में देखा कि ischemia हो रही है because of the burns, because of the burns. और burns में क्या होगा? Excessive loss of the fluid, excessive loss of the fluid, dehydration की वजह से. So the patient, they present with the thirst and the signs of the dehydration. They are present on the physical examination as well. Sometimes the patient may have the intrarenal interstitial disease. जिस तरह से intrarenal causes में हमने देखा तो interstitial nephritis होती है या sometimes the vasculitis हो सकती है. इन patients में patient rash के साथ present करते हैं. Sometimes obstructive nephropathy के साथ जो post renal causes हैं जिनमें obstructive नेफ्रोपैथी होती है तो इनमें पेशेंट जो है पैल्पेबल ब्लैडर के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं. अगर ब्लैडर में कोई ग्रोथ, कोई मास, कोई ट्यूमर है तो इनमें पैल्पेबल ब्लैडर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेंगे. ब्लड टेस्ट करवाएंगे. एजोडीमिया की वजह से हमने देखा यहाँ पर नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ी हुई होगी, पोटेशियम बढ़ी हुई होगी, सीरम सोडियम बढ़ा हुआ होगा, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है. यूरिन में अगर हम जाते हैं तो जीएफआर पर क्या इफेक्ट आएगा? कम होगा. ओलिगोयूरिया और एन्यूरिया के साथ ये पेशेंट जा रहे हैं. ठीक है, यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, क्रिएटिनिन क्लेरेंस करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एब्डोमिनल सीटी स्कैन एंड एमआरआई टू एक्सक्लूड द सम ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूरोपैथी. अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज हैं तो उनको एक्सक्लूड करने के लिए फिर हम सीटी और एमआरआई की तरफ तक जाएंगे कि कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज तो नहीं है अगर इस एआरएफ के पीछे. क्रोनिक रीनल फेलियर पर आ जाते हैं. क्रोनिक रीनल फेलियर में दिस इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द एक्यूट. और यहाँ पर डैमेज हमारा क्या हो रहा है? देयर इज इरिवर्सिबल डैमेज. और एक्यूट में हमने देखा था कि दैट वाज द रिवर्सिबल बट सडन डैमेज. यहाँ पर ये डैमेज क्या है? प्रोग्रेसिव है. स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली ये लॉस बढ़ता जाता है, प्रोग्रेसिव होता है. और जैसे जैसे ये प्रोग्रेसिव डैमेज होता है तो आगे चल के ये इरिवर्सिबल भी होता जाता है. एंड देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ द रीनल फंक्शन with the permanent destruction of the nephrons over a long period of time and terminating in the death or requiring the renal transplant. Chronic nephropathy, जो भी chronic nephritis हैं या tubular diseases हैं, ये सब लीड कर सकती हैं CRF को, chronic renal failure को. कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पर आ जाती हैं? Either there are glomerular pathologies या tubular interstitial pathologies. दो तरह के lesions हो सकते हैं जो कि CRF को लीड करते हैं. glomerular pathologies या जो है tubular interstitial disease है. यहाँ पर भी जो है डिजीज जो है एक जगह पर कन्फाइंड नहीं रहती है. जिस तरह से हमने प्री रीनल और पोस्ट रीनल कॉजेस में देखा कि इंट्रारीनल नेफ्रॉन डैमेज अल्टीमेटली हो जाता है किसमें? एआरएफ में. यहाँ पर भी हम देखते हैं तो डिजीज कन्फाइंड ग्लोमेरुलर तक लिमिटेड रहे. इन क्रोनिक केसेस दिस इज नॉट वेरी मच सीन इन केसेस ऑफ द क्रोनिक रीनल फेलियर. या हम ये कहें कि ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज हो और वो क्रोनिक में रन करे और वो लिमिटेड रहे ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल पर, ये भी जो है अनकॉमन है कि इस तरह से डिजीज सिर्फ और सिर्फ ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल तक लिमिटेड रहे. सो अल्टीमेटली मैसेज क्या है कि डिजीज स्टार्ट तो ग्लोमेरुलाई से हो सकती है, स्टार्ट तो ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल से हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली पूरा का पूरा नेफ्रॉन जो है वो अफेक्ट होगा, पूरा का पूरा किडनी डैमेज होना शुरू हो जाएगा. जब ये लॉन्ग स्टैंडिंग होगा और क्रोनिक जो है डिजीज रन करेगी, क्रोनिक कोर्स में डिजीज जाएगी, तो ऐसी सूरत में अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा. At the final stage of the CRF, all parts of the nephron they may be involved. अच्छा, ग्लोमेरुलर डिजीजेस में हमने पहले लेक्चर्स में देखा था कि कौन सी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है जो कि क्रोनिक करवाती हैं. उनकी जस्ट रिकॉल है यहाँ पर, जो कि CRF को लीड कर सकती हैं. सो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो कि क्रोनिक है यहाँ पर आ जाती हैं. कौन सी है? प्राइमरी है और सिस्टमिक के दो तरह की ग्लोमेरुलर डिजीजेस होती हैं. और उनमें प्राइमरी कौन सी है?
मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव है, मिनिमल चेंज है, एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन नेफ्राइटिस है। ये सब प्राइमरी है और ये प्राइमरी अल्टीमेटली क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवाती हैं एंड क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज वन ऑफ द कॉज फॉर द CRS। अब कुछ सिस्टमिक की लिस्ट है जिसमें SLE, सीरम सिकनेस नेफ्राइटिस है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। ये क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ही करवाती हैं, लेकिन ये सब के सब क्या है, सिस्टमिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवाती हैं। तो ये सिस्टमिक हो या सेकेंडरी और प्राइमरी, ये अल्टीमेटली सब दे आर द ऑल कॉजेस ऑफ द chronic glomerulonephritis. In chronic glomerulonephritis, this is one of the cause for the development of the chronic renal failure. Glomerular diseases आगे इस तरह से tubulointerstitial diseases हैं जो कि ट्यूब्यूल्स में और इंटरस्टिशियम को अफेक्ट करेंगी और ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम के बाद ये अल्टीमेटली CRF को लीड करेंगी। Damage to the tubulointerstitial tissue, this results in the alteration in the reabsorption and the secretion, जो कि इनका tubules का main function है, and leading to the excretion of the large volume of the dilated urine. इनको हम तीन चार कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। कुछ जो है इनमें से वेस्कुलर डिजीजेस हैं, कुछ इन्फेक्शियस हैं, कुछ टॉक्सिक हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव हैं, जो कि ट्यूबुलोइंटरस्टिशियल डिजीज हैं। वेस्कुलर लीजन्स में हाइपरटेंशन आ जाता है, जिस तरह से हम बार-बार कह रहे हैं कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द कॉज फॉर द एक्यूट रीनल फेलियर। इसी तरीके से एसेंशियल हाइपरटेंशन जो कि प्राइमरी हाइपरटेंशन है, अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग है, दिस मे बी वन ऑफ द ट्यूबुलोइंटरस्टिशियल डिजीज लीडिंग टू द CRF। इन्फेक्शियस कॉजेस में पाइलोनेफ्राइटिस है जो कि रिकरेंट UTI में हो रहा है, या क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस है, ये सब क्या करवा सकते हैं, CRF में CRF को लीड करेंगे। अगेन पाइलोनेफ्राइटिस इज डिजीज व्हिच इन्वॉल्व्स द ट्यूब्यूल्स। उसके बाद टॉक्सिक कॉजेस हैं जिनमें कुछ ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे फेनेसिटीन है, एस्पिरिन है, एसिटामिनोफेन है। तो इनका अगर क्रोनिक या टॉक्सिक डोजेस में अगर यूज किया जा रहा है so they may lead to the CRF। उसके बाद कुछ जो है क्या है मेटल्स हैं जिनमें लीड, कैडमियम एंड यूरेनियम आ जाता है। इनका एक्सपोजर या इनकी जो है डिफरेंट डाइटरी फैक्टर्स में, जिस तरह से वाटर इनटेक में अगर यूरेनियम की, कैडमियम की या लीड पॉइजनिंग की कोई इस तरह से कोई इफेक्ट है, तो वो कंजप्शन जो है वो एज ए टॉक्सिक कॉज फॉर हो सकती है फॉर द CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर में। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस में अगेन स्टोन्स हैं, ब्लड क्लॉट्स हैं, एक्सटर्नल ट्यूमर्स हैं जो कि एक्सटर्नल कंप्रेशन करवा सकते हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इनलार्ज प्रोस्टेट है जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के कॉजेस हैं, जो कि ARF में हमने देखे थे। सेम यहाँ पर भी वही ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस हैं जो कि ट्यूबुलोइंटरस्टिशियल पैथोलॉजी करवाएंगे, अल्टीमेटली CRF को लीड करेंगे। ठीक है, तो ये चार डिफरेंट कैटेगरीज आ गई जो कि ट्यूबुलोइंटरस्टिशियल पैथोलॉजी करवाएंगी। और ग्लोमेरुलर डिजीजेस में अगेन दो ही आ जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेस आ जाते हैं। इन ग्लोमेरुलर डिजीजेस को या ट्यूबुलोइंटरस्टिशियल डिजीजेस को दोनों में देखें तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा नेफ्रॉन डैमेज होता है और ये स्लोली एंड प्रोग्रेसिव डैमेज होता है, इरिवर्सिबल डैमेज होता है और लीड करता है CRF को। सम साइंस they are more obvious than the others, और कुछ कॉमन साइंस जो हैं वो क्या है, यहाँ पर ट्यूबुलोइंटरस्टिशियल डिजीज में हमने देखा तो वहाँ पर ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो सकती है and especially at the night time and followed by the decreased urination in advanced cases of the CRF। तो CRF के क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजीज है तो इनिशियल फेजेस में, इनिशियल मंथ्स में आप कह सकते हैं the patient may have the increased urination and followed by over the period of the months this may be with the decreased urination। उसके बाद sometimes the blood in the urine common symptom नहीं है CRF का although but this may be one of the presenting feature। उसके बाद हम देखते हैं urine that is cloudy or the tea colored urine formation हो सकती है patients with the chronic renal failure। Specific features क्या हैं जो कि full blown CRF को कैटेगराइज करते हैं, उनको दो हेडिंग्स में हम देखते हैं। एक है प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस, प्राइमरी यूरेमिक मैनिफेस्टेशन जो कि रीनल है, और दूसरी है सेकेंडरी जो कि एक्स्ट्रा रीनल यूरेमिक मैनिफेस्टेशंस हैं ऑफ द CRF।
प्राइमरी केसेस में हम देखते हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ जाती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो वहां पर हमने एआरएफ में स्किप किया था, यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाएगी कि क्या चीज हो रही है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द रीनल dysfunction there is acid base balance, there is disturbance in the acid base balance। ये जो acid base balance की disturbance हुई है ये क्या करवाएगी, there is excess accumulation of the hydrogen ion, while the bicarbonate it declines as a compensation for the increased level of hydrogen ion within the blood में hydrogen ion की accumulation होगी, excess होगी। और यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि इसके रिलेट में कम हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, पर एक्यूट रीनल फेलियर में क्यों होती है जबकि यूरिया भी अपर लेवल में बढ़ रहा है? तो ये यूरिया के साथ नहीं है ना, हाइड्रोजन आयन के साथ है। तो बैलेंस तो होगा ना इनके बीच में, बाइकार्ब्स और उनके बीच में। देखिए एक्यूट डैमेज हो सकता है, एक्यूट डैमेज की वजह से जो है हाइड्रोजन आयन की एक्यूमुलेशन हो सकती है वहां पर भी एआरएफ में। दिस इज नॉट सेकेंडरी टू द यूरिया। क्लियर है नहीं? तो एक्सेस हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या कर रही है, देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ द बाइकार्ब विद इन द ब्लड, और इसको हम क्या कह रहे हैं एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लिनिकल सिंड्रोम जो है यहाँ पर कंपनसेशन, इसकी जो ब्रीदिंग होती है वो ब्रीदिंग पैटर्न को इसको क्या कहते हैं हम, कॉस्मोल ब्रीदिंग। ये किस तरह की ब्रीदिंग होती है, एपिसोडिक ब्रीदिंग होती है, यूनिफॉर्म पैटर्न में चलती है, लेकिन ये डीप एंड जो है बहुत ज्यादा डीप होती है, मतलब बड़ी बड़ी जो सांसें इसमें मिलता है इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाइपरकैलिमिया की सिग्निफिकेंस सारी की सारी पैथोजेनेसिस बैकग्राउंड क्या है, जीएफआर डिक्रीज हुआ है, जीएफआर डिक्रीज होने की वजह से देयर इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द पोटेशियम विद इन द ब्लड, वी कॉल इट हाइपरकैलिमिया। इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इरिथमियाज होंगी, जो कि हमने एआरएफ में भी देखा कि वहां पर भी इरिथमियाज हो रही हैं। उसके अलावा यही हाइपरकैलिमिया वीकनेस, नॉजिया, वोमिटिंग, समटाइम्स एब्डोमिनल पेन के साथ, डायरिया के साथ, मस्कुलर इरिटेबिलिटी के साथ या फ्लैसिड पैरालिसिस के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं पेशेंट्स व्हिच आर एक्सपीरियंसिंग द हाइपरकैलिमिया। उसके बाद और रीनल कॉजेस क्या है, रीनल मैनिफेस्टेशन जो यूरेमिक मैनिफेस्टेशन है वो क्या है, सॉल्ट एंड वाटर इम्बैलेंस, हाइपर यूरिसीमिया, उसके बाद एजोटीमिया। अब इनकी डिटेल देखते हैं। सॉल्ट एंड वाटर की जीएफआर जैसे डिक्रीज होगा तो सोडियम एंड वाटर की cannot pass sufficiently into the Bowman's space and leading to their retention। अब एक तरफ salt and water retain हो रहा है, दूसरी तरफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वो भी एक्टिवेट होगा। अब कहीं तो salt and water अगर रिटेन हो रहा है तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कंपनसेशन में अलग से एक्टिवेट होगा, और रेनिन एंजियोटेंसिन की वजह से क्या होगा, और ज्यादा रिटेन होना शुरू हो जाएगा, और सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी, वाटर रिटेंशन ज्यादा बढ़ेगी। अल्टीमेटली ये किस तरह से प्रेजेंट करेगा, ये जो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन है, हाइपर वॉल्यूमिया तो हो रही है, हाइपर नेट्रीमिया तो हो रही है, ये दो फीचर्स तो कॉमन होंगे सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन में, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो ओवरबर्डन हो रहा है इसका हाइपर नेट्रीमिया की वजह से और हाइपर वॉल्यूमिया की वजह से, इसकी वजह से हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगा, और फिर एडिमा के फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये एडिमा अराउंड द फेस, अराउंड द हैंड एंड द फीट, एंड देन पल्मोनरी एडिमा के साथ प्रेजेंट करेगा। फिर इनके अपने अलग से कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर पल्मोनरी एडिमा हो रही है तो फिर उसके डिस्निया के फीचर्स और वो फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से हाइपर यूरिसीमिया है, जीएफआर कम हुआ है तो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड भी है, एंड दिस में प्रेजेंट एज ए गाउट। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन जो हो जाती है गाउट में, जॉइंट्स में एंड सॉफ्ट टिश्यूज में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की, तो अल्टीमेटली हम ये जो है गाउट के साथ प्रेजेंटेशन हो सकती है। एजोटीमिया को हमने देखा कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आते हैं, और ये यूरिया कैटेनिन की म्यूएन की एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी कॉजेज है जो कि एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशंस हैं,
CRF। एजोटीमिया कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सॉरी एनीमिया। तो एनीमिया में क्या हो रहा है? देयर इज डिक्रीज प्रोटेक्शन ऑफ द erythropoietin by the decreased kidney function and decline in the erythropoiesis and anemia। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या हो रहा है? देयर इज रिटेंशन of the salted water and secondary causes, उसकी वजह से हार्ट पर वर्कलोड बढ़ जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से हार्ट पर वर्कलोड बढ़ जाएगा, और हार्ट पर वर्कलोड बढ़ेगा तो क्या होगा? पेशेंट में गो इनटू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जो कि व्हाट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? कि हार्ट के पास जितना वर्कलोड आ रहा है, जितना ब्लड आ रहा है, उसको आगे पुश नहीं कर पा रहा है, तो अपना जो है इफेक्टिवली पूरा का पूरा जो वर्कलोड है वो आगे ट्रांसफर नहीं कर रहा। दैट इज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा कि पल्मोनरी एडिमा हो रही है। एडिमा जनरलाइज्ड एडिमा होती है में सीआरएफ के पेशेंट में। तो जो है फेस पर, आर्म्स पर, लेग्स पर एडिमा, तो पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा हमें मिलेगी, लेकिन यही एडिमा अगर पल्मोनरी सिस्टम में जा रही है तो ये यहाँ पर जो एडिमा होगी तो ये रेस्पिरेट जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को जो है वो डिस्टर्ब करेगी, और उसकी वजह से पेशेंट को ब्रीथलेसनेस के साथ, डिस्निया के साथ प्रेजेंट करेगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में एजोटीमिया, जो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रही है बीओएन की वजह से, एजोटीमिया की वजह से देयर इज डैमेज टू द म्यूकोसा, और ये म्यूकोजल अल्सरेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ये अल्सरेशन अगर स्टमक में है तो वहां को स्टमक को इन्वॉल्व कर सकती है। इंटेस्टिनल जो है म्यूकोजल ब्रश बॉर्डर जो है इंटेस्टाइन में, उसको भी अफेक्ट कर सकती है, एंड देयर इज अल्सरेशन विद इन द एलिमेंट्री कैनाल। So patient may have nausea, vomiting, index, diarrhea. These may be the features because of this ulceration within the alimentary canal or the digestive tract. उसके बाद हम माइनर इफेक्ट्स अगर हम देखते हैं तो स्किन पर और स्केलेटल सिस्टम पर आ जाते हैं। स्किन में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो है कुछ पिगमेंट्स की, यूरिनरी पिगमेंट्स की, जिसमें यूरोक्रोम इज ऑन द टॉप, उसकी डिपोजिशन नजर आती है स्किन में। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में दो फीचर्स हमें यहाँ पर कॉमनली नजर आते हैं, ऑस्टियोमलेशिया है, ओस्टेटस फाइब्रोसा है। ओस्टियोमलेशिया दिस मे बी बिकॉज ऑफ द deficiency of the vitamin D। ओस्टेटस फाइब्रोसा क्या है? दिस इज एलिवेटेड लेवल ऑफ द पैराथायरॉइड हार्मोन की वजह से, पैराथायरॉइड हार्मोन की एक्सेस हो जाएगी, तो ये क्या करवाएगा? कैल्शियम लेवल कम हुई, कैल्शियम लेवल क्या करवाएगा? इस पैराथायरॉइड हार्मोन की एक्सेस सिक्रेशन करवाएगा, और फिर अल्टीमेटली ये ओस्टेटस फाइब्रोसा की तरफ लीड करेगा बिकॉज ऑफ दिस पैराथायरॉइड हार्मोन। डायग्नोस कैसे करेंगे? इनिशियली we have the medical history, that is very important in determining the risk factors कि कहाँ से कहानी शुरू हुई है developing the kidney failure। हिस्ट्री के साथ साथ जो है कुछ और जो फीचर्स हमें चेक करने होते हैं, जनरल अपीयरेंस देखनी होती है। CKD के पेशेंट्स in severe cases individuals they may present with the weakness and the muscle wasting के साथ। उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई होगा, यूरिन टेस्ट हमने देखे हैं कि सारी जो है इस पर डिटेक्ट करेंगे, जो कि बीयूएन को और एजोटीमिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, क्रिएटिनिन की और यूरिया की। उसके बाद एक्सरेज आ जाते हैं, सीटी स्कैन, एब्डोमिनल, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन आ जाती हैं जो कि सीआरएफ को जो है डायग्नोस करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द क्रोनिक रीनल फेलियर। ये टॉपिक आपके बुक में इस तरह से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि क्लिनिकली इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा थी कि एआरएफ और सीआरएफ, क्योंकि हम पैथोलॉजी में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सारी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। ट्यूबुलोइंटरस्टिशियल डिजीज जो कि हमारा कमिंग लेक्चर है पाइलोनेफ्राइटिस का, वो भी सारा का सारा क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। मेडिसिन की तरफ आप जाते हैं तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम और एआरएफ और सीआरएफ, इन चार चीजों पर डिस्कशन होती है। ट्यूमर्स किडनी के इतने कॉमन नहीं है, although they are important, लेकिन वहां पर जो ज्यादा जो चार टॉपिक हैं किडनी में क्या है? नेफ्रोटिक, नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो कि पार्शियल रीनल फेलियर है, और कंप्लीट रीनल फेलियर में एआरएफ और सीआरएफ आ जाते हैं।
तो ये पूरा का पूरा क्लिनिकल टॉपिक है, ऐसा जिसमें पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारा बैकग्राउंड है, बाकी अदरवाइज ये सारा का सारा मेडिसिन का टॉपिक है ना, तो कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ऐसा जिस तरह से बुक में लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें कुछ चीजें मेडिसिन की उठाई हुई हैं। जरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ARF है क्या, CRF है क्या, उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है क्या, उसको हम किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं अपनी ट्यूबुलर डिजीजेस के साथ, इंटरस्टिशियल डिजीजेस के साथ या ग्लोमेरुलर डिजीजेस के साथ। So that was the main background of the today's topic. Next lecture हम इंशाल्लाह करेंगे पायलोनेफ्राइटिस पर। कोई बात समझ में ना आई तो आप लोग पूछ सकते हैं।